जूम पे स्ट्रीम करेंगे, ठीक है? तुम्हारे हवाले वतन साथियों। Good evening, everyone. Good evening. Wishing you all a very happy Diwali. May the festive season bring all the prosperity and good health to one and all. I welcome each one of you. This is the weekly meeting we are having after a long break because there was festive season and many of us went to Kodai. But I hope you all enjoyed being those who went to Kodai, you all enjoyed in Kodai. And welcome back once again. Now I request Club Secretary Meera to please read the Secretary's report. Good evening, everyone. Wishing you a very happy, healthy, wealthy, and prosperous Diwali. Same to you. Thank you. Okay, activities done for the October month. 2nd October, we had board meeting at Please excuse us because this weekly meeting is happening after a long time. We forgot to call the meeting to order. Once again, good evening, everyone, and wishing a very happy Diwali to one and all. Now I request Club Secretary Meera to continue with the Secretary's report. Thank you. Okay. October 2nd, we had a board meeting at Ramesh Jalan's residence. 3rd October, inauguration of Shanti Nagar School with distribution of goodies, uniform, tree plantation. October 4th, got the report of Turahalli upgradation. October 6th to 10th, Kodai trip. 7th of October, joint meeting with Kodai, Rotary Club of Kodai, and flag exchange followed by musical evening by Vijira. 8th of October, musical Dandiya night at Kodai. 9th, donation of 40 school bags to CMS Girls Home in Kodai, and inauguration of 50-inch TV donated by RBJ to Perungokadu Happy Village Tribal School adopted by Rotary Kodai. 14th, we had business excellence meet at Milano hosted by Mittals. 15th October, RBJ was one of the supporting club for Kala Utsav Diwali exhibition come sale by people with disabilities. 17th October, self-defense activity for Tapovan children. ICDF professional at Tumpur on 16th of October. 28th October, we have helped the patient for his treatment at Ramdurai Hospital. Coming to birthdays and anniversaries of this month. 22nd October, Rotarian Vivek Kothari is celebrating his birthday. 22nd, Rotarian Nikhil Nanaya is celebrating his birthday. Is it there? 22nd October, Rotarian Vijiraj and Sukanya is celebrating their anniversary. 22nd October, Manjiri Joshi is celebrating her birthday. 24th, Rotarian Nitin Agrawal is celebrating his birthday. 24th, Rotarian Sukanya Raj is celebrating her birthday. 27th October, Rotarian Arun Ladda is celebrating his birthday. I think he's here. And Anju Poddar is celebrating her birthday. And 28th October, Rotarian Vipin Agrawal is celebrating his birthday. We wish everyone a very happy birthday and happy anniversary. Over to you. Thank you, Meera. Coming to upcoming activities of the club, this Sunday 23rd is we are celebrating World Polio Day.
there is a World Polio Walkathon organized. Our club is a joint host in this walkathon. Flag off is from Town Hall and it ends at Lal Bagh. It starts at 8 a.m. requesting Rotarians and ants to kindly attend the polio walkathon. Same day, Sunday 23rd at 10:30 a.m. we have distribution of ration kits at Kormangla. We are distributing 500 ration kits to the needies, mainly auto drivers and maids. 30th of October, we are celebrating our Diwali family meet, requesting everyone to please keep yourself unoccupied on that day. Occupy yourself with the Diwali meet. We are having it at Hotel Sterling Map, which is opposite Leela Palace Hotel. The details will follow soon. On 4th of November, our partner club of Dignity Project, Rotary Club of Morley, Australia, are visiting us. We shall be having them as our invited guest at our weekly meeting next week. Looking at the success of our limb camp, we are having another set of limb camp at Sira, which is near Tumkur, on 13th of November. So we shall be taking a mobile van to Sira and we will be enabling the needies with the limbs. So that is all for the upcoming activities. Today we have few Rotarians, visiting Rotarians with us. I request President-elect from Rotary Club of Sadashiv Nagar, Dilip, Rotarian Dilip, if you can kindly introduce yourself in 2 lines. My name is Dilip Kumar, basically from Solar, and I am a Rotarian since 2014. Thank you, Dilip. We have from Rotary Cantonment, Rotarian Raghunandan Sharma. Welcome, Raghunandan ji, if you can introduce yourself. I have joined this club. Basically, the Rotary CAT has started a senior citizens club. Okay. So I am from that wing of the Rotary, and I've been a member there for over 15 years now. Welcome, Raghunandan ji. From our prospective member, we have our prospective member, Rotarian Mahesh Dayal with us. If you can introduce yourself. My name is Mahesh Kumar Dayal. And only So if you can introduce about your business or we are into real estate. Normally we are builders. welcome, Mahesh ji. We have Vignesh Kota with us. Yes. Hi, I'm Vignesh. I'm a visitor. It's my first time. I was invited by Mr. Ajay Pawar. I'm into business. Total distribution is what. Welcome, Vignesh. So now the most awaited time of the day. We have with us Dr. Aditya Shukla. I request Pastor. I request Rotarian Pradeep to please introduce the speaker. Thank you, Madam President. Fellow Rotarians, ladies and gentlemen, we just heard our Madam President with great difficulty saying that keep yourself occupied or unoccupied. So it's, I don't know, I think it's called the Freudian slip. What we think is what we say, because we cannot imagine that we will remain unoccupied. That's the life way. So in this sort of world where we cannot imagine remaining unoccupied, even if we are unoccupied, our mind is always occupied. So then this is the time we need somebody to come and give us some advice on how to manage this. And today we are very, very fortunate to have a very learned person here amongst us who's going to give us some advice, I guess, on this topic. He is, as already introduced, Dr. Aditya Shukla is a multifaceted personality blessed with some incompatible traits. He's a reputed scientist, progressive thinker, impressive orator, spiritual guide, motivational speaker, popular poet, author, and above all, an authority on India's most loved and popular epic, Sri Ramcharit Manas. It's very difficult to find so many things and traits in one personality, in one person. Holds a doctorate degree in chemistry, MBA in operations management, and a master's degree in Hindi literature.
works as a lead scientist at ITC Life Sciences and Technology Center at Bangalore. He's author of a book, and another thing is that several times when we listen to trainers, we think that there are a lot of things trainers and coaches will tell us, but may not practice that. But here is someone is one of those rare thinkers who practices what he preaches and sets an example with his lifestyle and behavior. Ladies and gentlemen, a warm round of applause. Please welcome. Yes. नहीं अब यहाँ से So, thank you very much, sir. So, what is the good part of Hanuman ji is there? He is a art Chiranjeev में से एक है. He is still here. And do you know because of what Mata Sita has given Ashirwad? So you will be Ajab Kamal. So Tutu Matas is giving Ashirwad. Correct, na? So Meeraji, Neetu ji, thank you very much. And before going to my subject today, I would like to express my sincere gratitude to Santosh Bhaiya, Naval ji, Vijay Bhaiya, Sanjay Bhaiya. I think this is my second program in Rotary. Yes. My first program, I was hosted the Kavi Sammelan. Kavi Sammelan. Then it is a third program. Third program. So now you can join us as Rotarian. I am very much here. So, and who has introduced me? I thought it is sir, Pradeep. So I will start from your point only, and because the thing is there is two things: a conscious and unconscious thing. So you have mentioned that, na? So if you see the title of my presentation today, so a conscious journey. So first thing is there only that we should have the conscious journey. Most of the thing we do, we not aware. So very much important thing is there. आप साक्षी भाव से काम कीजिए. One word is there. What you are doing, you should be witness yourself. Even if you are taking your breakfast or taking your lunch, you should be aware about each and individual bite. If you are doing that, that means you are doing justice to your lunch and breakfast. But you don't know. Most of the time, we do unconsciously, and consciously we wait for the result. There is the problem. So whole this journey is a conscious journey. Second thing is there. If you are started journey, you are having some milestones, some destination, and that milestones will let you know you are in right direction or not. But in life case, we don't have any milestone. We are having journey. Most of the people having that where to go very widely, but rare people are having target in their life. They are having target for the business, they are having target for the meetings and many things. But if I will ask what is the target, what is the purpose of your life, I don't think so anyone will be able to give a conscious answer. Third thing is there, person to personality is the result. So I will give you very much example. Dr. Saab is here. So you are having fever. So fever is a one symptom. What you go to the doctor. Doctor will give you some set of medicine. You will take the medicine. What will happen? That fever will come down. Fever will come down, then you are cured. So what is happening here? You are very much aware of this process. So you have got temperature, you will go to the doctor, doctor will give some medicine. After taking the medicine, your temperature will come down. If it does not come down, what will do? You will go again to the doctor, doctor will change the medicine, or he will prescribe some other things, go for some particular diagnosis. Again, it is not happening. What you will do? You will change the doctor, but you will keep doing this process till your temperature will come down. Correct? But for life case, this in between is not there. Because I am not aware I am having temperature.
Correct? Na? So I have started my journey. Since milestone is not there, I am not aware whether I am reaching to my goal or my destination. And once I reach destination, so I am telling, I am reaching some particular place and I am naming this is the destination. Very rare people there in this world who has already decided what is a destination and thereafter consciously started journey in each there. Hanumanji is one of them. So we have to learn what is all about Hanumanji and how we can similarly we can start our journey. So I will give few examples. I have given 30 minutes for my presentation. So 30 minutes is a very difficult to even start the dialogue for this particular topic. However, Hanumanji was always having time-bounded activities. Okay. So I thought if Guru is having time-bounded activities, then Chela should also manage this. So I am going to start the dialogue only within a half an hour. I am not going to teach you anything. I am not going to tell you anything. I am initiating the dialogue and thereafter we will discuss. Okay. So this book, after 5 years, I could get this book. So my Guruji, Pujyapat Avadeshanand Maharaj, he has released this book on I think 6th of October. And thereafter, renowned heart surgeon, Dr. Jolie, he has launched this book. And the purpose of selecting this doctor is there कि Hanumanji was also used to हृदय चीर के दिखाने वाले थे. तो हमने कहा कोई ऐसा आदमी बुलाओ जो हृदय चीरता हो. तो heart surgeon, renowned heart surgeon, he was. Yes, so I will start this whole discussion from this particular book. Actually, this is the title of one book. If you get time, please read this book. That this book is there. What got you here won't get you there. Very powerful. Correct, na? So the thing is there. We are having one set of expertise, we set of knowledge, set of expertise, and when we are keep practicing that. So what will happen? With those kind of information and knowledge and expertise, we can reach to some particular destination. Thereafter, you have to change that. You have to change that. I will give a very simple example. So, if you are having this, you want to go to Delhi. So actually, you are not going to Delhi. You are going to some particular place. Uncle ke ghar, auntie ke ghar, Raj Bhavan, idhar, lot of places are there. This very defined place. But what you are doing? How you are starting your journey? You are starting from auto, or taxi, or bus, or metro, or your own car. You are reaching to the airport. From airport, you are taking flight, and further you are changing everything. Correct, na? If you will think that in only one mode of transport, you can start your journey and you can reach the destination, very rare. Maximum you can join the Rotary Club meeting, that's all, not more than that. Okay, because you can take your car, you can come to here. But you are having long journey and bigger destination or bigger goal, then you should have set up expertise and time to time you should realize that. Otherwise, what will happen? You will reach in this particular position with the help of what you got. But if you want to go here, so after some few steps, you will say did it. So as a person, you should keep checking कि मैं यहाँ तक आने के लिए तो ठीक है, अब मैं एयरपोर्ट का ही अपना घर डिक्लेयर कर दूं तो अलग बात है, क्योंकि फ्लाइट है, मुझको मेरी मौसी के घर नहीं लेके जा सकते. Then I have to change some mode of transportation. We are keep doing these things unconsciously in my lifestyle, but for my life, I never. The only thing my request is there, if you will feel any point of time in your career means, I'm not talking about your job profession, this is also one of career. Ultimately, if you feel anything, I'm not able to have the dialogue with my family. I'm not able to have dialogue with my kids. I'm not able to discuss with my partner. From long time, I am a partner. I was not having any problem. Suddenly, why this is happening? Might be, you have to think, won't get you there. Because up to this journey, ठीक है, बहुत अच्छा है, यहाँ तक तो ठीक है. लेकिन आगे की यात्रा के लिए आपके पास जो knowledge है, जो set of expertise है, it is not going to help you. Either it is too high or too low. I am not saying that आपके पास संसाधन कम है. So with this particular thought, if you get time, if you get this book, please read it. It's a very important book. Marshall Goldsmith. Now, next thing is there, my book. Listen. So this book, the title of book is there, Safal Vyaktitva Ka Hanuman Mantra. This is the book. Here 4 words is there. One is a Safal,
Second thing is the Vyaktittva. That is the personality. Hanumanji and Mantra. So I will talk about these 4 words. How these 4 words is having meaning in our day-to-day activities, and how we can get some input for my further journey. So, self-explanatory. Success is not always what you see. So, somebody will see this person, upper side, and they will see you are a very successful person, or anyone is successful person. But if you see the deep rooted, this person is a more successful. Correct? So that means success is having different definition. If you say what is the definition, so today is a very popular source is a Wikipedia. So if you want to know anything, please go to the Wikipedia. Something or other very close to your definition you will get. So what Wikipedia defined, very interesting. Success is the state or condition of meeting a defined range of expectation. Clear? That means it is a state or condition. It is not a destination or anything. So it is a state or condition. What? Meeting a defined range. So range is a defined. If it is not defined, then it is not success. Of expectation. So expectation. That means these 3 words are there, which is defining your success. But do you know what is the beauty of these words? The state and condition, defined range, and expectation, all are variables. Persons change, all are change. Your state of mind, my state of mind, different. Your range of definition of success, my range of definition is change. Your expectation, my expectation, totally different. Forget about 2% within a same person. It is keep changing. It is keep changing. What does it mean? It is a variable. That means your definition itself is a variable. मतलब क्या है कि आप दौड़ करके पहुंच रहे डेस्टिनेशन में और कोई गोल पोस्ट को आगे लेके चला जा रहा है, कैसे चलेगा काम? That is the biggest problem in your materialistic life. We people are keep chasing something which is always away from me. You know, so better what you think is that your conscious part will come in a picture here. Consciously you have to define. Now, how it is different? Just state. 2 person. एक के हाथ में चोट लगी है, वो रो रहा है, मुझको बहुत प्रॉब्लम है. दूसरे के पीठ में इतना खंजर लगा हुआ है, बोलते डोंट वरी, एवरीथिंग इज राइट. अपने घर परिवार में ऐसे लोग मिलेंगे. What does it mean? State is a totally different. Second thing, defined range. मैं अपना रेंज ऐसे डिफाइन करता हूं दिखाने के लिए, तो बाहर का पोर्शन बड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से कटा हुआ है. ठीक है? तो somebody wants to help me even for my defined range, they cannot help you. Because what I have defined, to showcase others, my definition is different. But for myself, it is very totally different. Then how you can expect that your knowledge, your expertise, your family member, your guru and everything, or your prarthana, your prayer is going to help you? Third thing, this is the expectation. If you ask anything is wrong in this fruit, this particular picture, each and everyone will say yes, this is wrong. Few fruits are missing. Correct, no? So what does it mean? These all are variables. So if anything is a variables, it is not a truth. Please listen very carefully. जो सत्य है उसका डेफिनेशन है त्रिकाल अबाधित है. जो सत्य है वह समय के साथ नहीं बदलता, वह आदमी के साथ नहीं बदलता, वह परिस्थिति के साथ नहीं बदलता, और यदि यह बदल रहा है तो वह सत्य नहीं है. और यदि सत्य के पीछे आपका लक्ष्य ही सत्य नहीं है, आपका सक्सेस का डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन अ फॉल्स, हाउ यू कैन अचीव दैट? करेक्ट ना? then अब सत्य क्या है? Now I will ask you a few questions. Can you tell me what is the time right now? Anyone, with minute, second, hour? 7:53:45. 7:54? 7:53:48. I'll change your year. 4:50:51. Thank you, Nawaji. This is not truth. ये सत्य है, लेकिन इस सत्य की उम्र है मिली सेकेंड.
जैसे वो आप बोलते हो मेरे कान तक आता है वो सत्य हो असत्य हो जाता है। व्हाट इज द डे टुडे? 21st October. डे आई मस्ट फ्राइडे। इस सत्य को उम्र है अधिकतम 24 घंटा है। 24 घंटे के बाद फिर आप बोलोगे फ्राइडे तो यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, मंथ कौन सा है? अक्टूबर। इस सत्य का उम्र है वह 1 साल है, अब 1 महीना है। ईयर कौन सा है? 2022। इस सत्य का उम्र है वह 1 साल है। ऐसे ही हम जिसको सत्य समझते हैं वो कुछ समय के लिए सत्य है और कुछ समय हटते ही वह क्या हो जाता है? असत्य हो जाता है। हमारी समस्या ये है कि मैं ये एग्जांपल दे दिया आप जान गए कॉन्शियसली, ठीक है, लेकिन अनकॉन्शियसली मैं अपने जीवन में इतने सारे असत्य को उसको ढोते रहता हूं, और मैं इसको दूसरा शब्द में कहूं तो सत्य के शव को ढोते रहता हूं, और मैं सबसे लड़ते रहता हूं कि सत्य यही है, सत्य यही है, सत्य यही। वास्तव में सत्य वो नहीं है। तो सत्य क्या है? जो त्रिकाल आपादित है, जो टाइम के साथ नहीं बदलता, आदमी के साथ नहीं बदलता, समय के साथ नहीं बदलता। जो बेंगलोर में है वही दिल्ली में है। लेकिन आप जो बोल रहे थे वो भी तो सही था। आपने कहा आज फ्राइडे है ना, यह सत्य तो नहीं है। तो फिर अब तो ये भ्रम आता है ना। यहाँ पर शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, वो बहुत बढ़िया डेफिनेशन देते हैं कि भाई जो ऑलवेज इनवेरिएबल है वह सत्य है, दूसरा जो ऑलवेज वेरिएबल है वह असत्य है। फिर आप पूछ सकते हो कि भाई मैं जो बोला हूं उस समय तो वेरिएबल नहीं था, एटलीस्ट 1 साल के लिए तो वेरिएबल नहीं है, वो 2022 है वो। तब यहां पर शंकराचार्य जी आते हैं, वो बोलते हैं कि ये मिथ्या है। जो कभी सत्य हो जो कभी असत्य हो ये मिथ्या है। जो आदमी इसको जानते हैं वो कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। आप सब लोग जानते हैं राम को कि वह सत्यनिष्ठ है, जो बोलते हैं वो करते हैं, यही जानते हैं ना? नहीं करते। राम ने सुग्रीव से कहा कि मैं बाली को एक ही वाण से मारूंगा, ये सेकंड प्लेस। और बाली को मारने के बाद बोलते हैं कि अचल करो तनु राखाओ प्राणा, कि मैं तुमको जिंदा कर दूंगा बाली, तुम चिंता मत करो। कहां गया उनका सत्य? समुद्र के सामने खड़ा हो जाते हैं धनुष बाण लेकर के कि मैं एक ही बाण से तुमको सोख दूंगा। समुद्र विनती करते हैं, धनुष बाण छोड़ देते हैं। कहां गया उनका प्लेस? बहुत लोग जानते हैं नहीं जानते मुझको पता नहीं। एक जयंत की कथा है, जो इंद्र का बेटा है, कौआ बन के सीता जी के पैरों में, उनके लिए वो बाण प्रहार कर देते हैं। और बाण ऐसा प्रहार करते हैं कि उनको तीनों लोक में सहारा नहीं मिलता। जयंत को भाग करके वापस राम के चरण में गिरते हैं। तब किन्न मोह बस द्रोह यद्यपि तहि कर बध उचित प्रभु छाड़े तति छोह वो कृपाल रघुवीर सम। वो उनका वध उचित था। उन्होंने आक्रमण किया था, बाली ने तो आक्रमण नहीं किया था, समुद्र ने आक्रमण नहीं किया था। राम जी को देखो कि वो एक संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, और सब लोग कहते हैं राम प्रतिज्ञावान है। लेकिन देखो वो कैसे बदल गए? क्योंकि राम जानते थे कि जब मैं प्रतिज्ञा लिया था तब यह सत्य है, और अभी यह सत्य नहीं है, यह असत्य हो गया है। प्रतिज्ञा सत्य के साथ समाप्त। मैंने बाली के राक्षसी प्रवृत्ति को मारने के लिए प्रतिज्ञा लिया था। जैसे ही बाली के अंदर से विकार खत्म हो जाता है, सत्य की उम्र खत्म। उसके बाद यदि आप मारते हो तो असत्य के साथ प्रतिज्ञा नहीं, असत्य के साथ हट रहता है। ठीक है, समुद्र है, रास्ता हिल रहे हैं, राम जी खड़ा होते हैं कि भाई विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी। यार तुम समझ ही नहीं रहे हो। लेकिन जैसे ही समुद्र को यह एहसास होता है वह सत्य की उम्र खत्म हो गई। फिर उसके बाद अब आगे बढ़ोगे तो आप असत्य के साथ आगे बढ़ रहे हो। राम की प्रतिज्ञा है, वह सत्य की प्रतिज्ञा है, और इसके लिए राम सत्यनिष्ठ है। आगे वो प्रतिज्ञा लेके जाते नहीं है। मैं एक प्रतिज्ञा ले लिया, और एक और उदाहरण बता रहा हूं। विश्व पितामह है, प्रतिज्ञा ले लिए कि मैं हस्तिनापुर के राज सिंहासन के साथ बैठे रहूंगा। वो लाश को ढोते रहे अपने प्रतिज्ञा। राज्यसभा में बहू है, कुलवधु है, उसके चीरहरण होते समय भी बोलते मैं प्रतिज्ञा से बताऊं। धिक्कार है ऐसे प्रतिज्ञा पर। वह सत्य नहीं है। याद रखिएगा, प्रतिज्ञा है, आपका प्रण है, वह सत्य के साथ है। सत्य की उम्र खत्म होते ही आप यदि प्रतिज्ञा की बात करोगे, वो प्रतिज्ञा नहीं, वो हट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम हट करते हैं, हमारे पास प्रतिज्ञा नहीं है। और समस्या क्या है? फिर कुछ छोटी छोटी चीज है। आई विल आस्क, कैन यू टेल मी दिस पर्टिकुलर पोस्टर इट इज इन व्हिच साइड ऑफ योर्स? Left side. झूठ बोल रहे हैं आपके राइट में, राइट साइड। आप क्या बोल रहे हो? लेफ्ट साइड में। मैं क्या बोल रहा हूं? राइट साइड में। ये आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पोस्टर यहां है,
इसलिए हम दोनों को ज्यादा समस्या नहीं हो रही है। बहुत बारी पोस्टर गायब रहता है और हम दोनों लड़ते रहते हैं, राइट है लेफ्ट है, राइट है लेफ्ट है, राइट है लेफ्ट है। समस्या क्या है? समस्या क्या है? अवर स्टेट इज अ डिफरेंट, हम दोनों एक दूसरे के साथ है। तो यदि आप ऐसे खड़े रहोगे तो समस्या है, आप ऐसे खड़े रहोगे तो ये समस्या। ये दोनों मिथ्या की स्थिति है। तो मैं क्या करूं? मैं मतलब हर बार ऐसे चेंज करता रहूं? कितने लोगों के साथ चेंज करूंगा? 180 डिग्री है यार। तो मैं तो जोकर हो जाऊंगा, नाटक का पात्र हो जाऊंगा। तो क्या करना है? कॉन्शियसली अपने पोजीशन को देखिए और सामने वाले के पोजीशन को देखिए। ऑटो वाला है, आपसे उलझ रहा है, लड़ाई मत करो उससे, उसके पोजीशन का ध्यान रखो, उसके स्टेट ऑफ माइंड का ध्यान रखो, आगे चलो मुस्कुरा के। कौन आदमी क्या कर रहा है, इन बातों को ध्यान देना है। और यही सत्य की परिभाषा है। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्शियसली वी डोंट प्रैक्टिस दिस। दिख रहा है कितना बढ़िया है? एक श्याम और एक श्वेत, दो पत्थर है। ये मिथ्या है, सत्य। जब तक यहां पर आप एक पर्दा नहीं, इग्नोरेंस का पर्दा नहीं डालोगे, तब तक ये सत्य है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी में लड़ते झगड़ते रहते हैं। नाउ सक्सेस, तो सक्सेस क्या है? सक्सेस का डेफिनेशन जो विकिपीडिया में बताया है ना, वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस का डेफिनेशन है मिथ्या के माया जाल से बाहर निकल करके जीवन में सत्य का प्रैक्टिस करना ही है, ये सक्सेस है। उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि मैं ट्रूथ मेरे साथ है कि नहीं है, और राम की मात्र विशेषता है कि वो कॉन्शियसली इस बात को जानते थे कि सत्य कब है और सत्य का लाश कब है। जिस दिन आप इसको पहचानना शुरू कर देंगे कॉन्शियसली, आपके साथ कोई तकलीफ नहीं होगी। हनुमान जी की सफलता है, हनुमान जी की सफलता सब लोग बहुत बड़ी बड़ी बात कहते हैं। मेरी दृष्टि से हनुमान जी की मात्र सफलता है, और यह सफलता है कि राम दरबार में देखिए कौन कौन है, वहां पर हनुमान जी, राम जी है, उनके चारों भाई है, भगवती सीता है, गुरु वशिष्ठ महान ज्ञानी है, कुल गुरु हैं, यहाँ पर स्थान नहीं पा सके। विश्वामित्र जी हैं, अपने तप के बल पर क्या क्या कर चुके, यहाँ पर स्थान नहीं पा सके। विभीषण है, लंका का राजा है, यहाँ स्थान नहीं प्राप्त कर सके। सुग्रीव है, वह किष्किंधा का राजा है, यहाँ स्थान नहीं प्राप्त कर सके। सुग्रीव है, हनुमान का बॉस है, यहाँ स्थान नहीं प्राप्त कर सके। यदि आपके अंदर कॉन्शियसली जो काम कर सकते हो, यू कैन नॉट इवन इमेजिन वेयर यू कैन रीच। पीपल कैन नॉट इवन थिंक, पीपल विल थिंक दैट यू वोंट डिजर्व दैट। तो हनुमान जी की सफलता पहाड़ उठाना, लंका चलाना, सीता की खोज करके लाना नहीं। इस आदमी को देखो कि राम है, अपने जो मिनिस्ट्री है उसमें वहां पर जगह देते हैं। तो नाउ कम टू द व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। एनीवन प्लीज वार्न मी बिफोर 10 मिनट। पर्सनालिटी में सब लोग क्या बोलते हैं? अच्छा बोलना, अच्छा दिखना, अच्छा सुनना, स्टेट मतलब क्या बोलते हैं? ह्यूमर, और पति उत्पन्न मति, इमीडिएटली आप रिस्पॉन्ड करते हो। दिस इज अ पर्सनालिटी। मैं बता रहा हूं पर्सनालिटी का परिभाषा क्या है। इसकी दो परिभाषा, दो डेफिनेशन है। वन इज एलिजिबिलिटी। सो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? वी नेवर थिंक इवन व्हाट इज माय एलिजिबिलिटी, करेक्ट ना? वी नो कि भाई आप रोज टेंडर भरते हो, वहां पर एलिजिबिलिटी लिखा रहता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है टेंडर के लिए। आपकी कंपनी 5 साल पुराना हो, इतना का टर्नओवर हो, ये ब्ला 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 ब्ला। आप परीक्षा देने जाते हो, एलिजिबिलिटी। आप ट्रेन में जाते हो, एलिजिबिलिटी। सब जगह एलिजिबिलिटी। लेकिन मैं अपनी लाइफ की एलिजिबिलिटी नहीं जानता, मेरी एलिजिबिलिटी क्या है, पात्रता क्या है। पात्रता यह है कि एज अ एम्प्लॉय यू कैन बिकम इंस्टीट्यूशन हेड, दिस इज योर एलिजिबिलिटी। ठीक है, कॉन्शियसली फील थिंक, दिस इज योर एलिजिबिलिटी। एज अ सिटीजन यू कैन रीच अप टू द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर पोजीशन अनलेस और अनटिल आप ऊपर कुछ खिसका ना हो और दिवालिया घोषित ना हो। This is only two conditions. After some certain age, you can reach up to here. So this is your eligibility as a citizen. और एक मनुष्य के रूप में आप नर से नारायण बन सकते हो। 32 वर्ष की उम्र में ये महान संत और आदि गुरु बन गए, भगवान शंकराचार्य बन गए। So as a human, this is your eligibility. हम कभी सोचते हैं मेरी एलिजिबिलिटी क्या है? Personality is the set of characteristics which help us to achieve success according to our supreme eligibility. जो व्यक्तित्व है वह गुणों का समूह है, वह गुणों का क्या बोलते हैं, आपके पास उपलब्धता है जो आपके एक्सट्रीम एलिजिबिलिटी तक आपको ले जाए। ये पर्सनालिटी है।
आप एम्प्लॉय है तो आपको इंस्टीट्यूशन हेड बना दे, आप सिटीजन हो तो आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दे, और आप यदि इंसान के रूप में देखते हो तो आपके अंदर देवत्व और दैवी गुण आ जाए। ये पर्सनालिटी का कमाल है। नेक्स्ट, कॉन्शियस, चैतन्यता, बहुत बढ़िया चीज है। ये सब लोग सुने होंगे आप लोग, रामचरितमानस की बहुत प्यारी चौपाई है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये 5 चीजों से, सॉरी, 5 चीजों से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। और शरीर नहीं, इस सृष्टि में हर चीजें 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन मेरा जो ध्यान है यहां जाता है बार बार, क्योंकि मैं भाषा और विज्ञान भी हूं, तो मुझको जो 8 वन है पढ़ लेता हूं मैं उसको। मैं बोला यार, इस शरीर के लिए देवता तरसते हैं। हर आदमी को लगता है कि जितने भी जो 33 कोटि के देवता है और उसके बाद 80 लाख यूनिक होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीचर्स हैं, उसमें मनुष्य श्रेष्ठ है। तुलसीदास इसको अधम लिखते हैं। तो मैं बहुत दिन तक सोचता रहा, ये अधम क्यों लिखते हैं, अधम क्यों लिखते हैं, अधम क्यों लिखते हैं। फिर मुझको इसका आंसर मिलता है समुद्र और राम की चर्चा करके। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब समुद्र के लिए समुद्र है, रास्ता नहीं देते राम जी को, और राम जी बहुत गुस्सा में खड़ा होते हैं और धनुष बाण लेकर खड़े हो जाते हैं। धनुष बाण लेकर खड़े हो जाते हैं तो समुद्र के सामने प्रकट होते हैं, बोले क्षमा हूं नाथ सब अवगुण मोरे, कि मेरे जो अवगुण है उसको क्षमा करो। राम बोलते क्यों क्षमा करो, क्यों क्षमा करो, ये तो तमाशा हो गया कि तुमको जो करना है तुम कर लो, उसके बाद हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। आई हैव लॉस्ट 3 प्रीशियस डे। तुमको मालूम है कि मैं किस असाइनमेंट के लिए जा रहा हूं। सीता के पास 30 दिन का समय है, रावण ने अल्टीमेटम देकर के रखा है, and you are in such a situation, you are showing your attitude। जब समुद्र राम से बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके व्यक्तित्व के लिए। वो तुलसीदास चौपाई लिखते हैं समुद्र के माध्यम से, वो फिर वो 5 चीजों को उपयोग करती हैं। गगन समीर अनल जल धरनी और इनका ही नाथ सहज जड़ कर। बोलिए 5 चीज है, जो अग्नि है, पानी है, मिट्टी है, हवा है और आकाश है। यह स्वभाव से बाय नेचर दे आर इन इनर्शिया, ये जड़ है। तो फिर तो समुद्र कहते हैं आप स्वभाव के कारण किसी को सजा नहीं दे सकते। ध्यान से सुनिएगा, आप मिर्ची को इसलिए सजा नहीं दे सकते तीखा है, गुड़ को इसलिए अप्रिशिएट नहीं कर सकते वो मीठा है, स्वभाव है उनका। और हम क्या करते हैं, हम लोगों के स्वभाव को नहीं समझते। मैं चाहता हूं मेरे के स्वभाव के अनुरूप सब हो जाए। यदि किचन में सब कुछ मीठा हो जाए, सब कुछ नमकीन हो जाए, सब कुछ तीखा हो जाए, हो गया खाना, हो गया कबाड़। ये दुनिया की खूबसूरती है, आपकी जो सक्सेस है, लाइफ का जो मजा है, इसीलिए है कि अलग अलग स्वभाव के लोग आपके साथ हैं। पहचानिए, पहचानिए उनके स्वभाव को। स्वभाव के लिए सजा नहीं है। 2 बेटे हैं आपके, दोनों का स्वभाव अलग है। एक मतलब तेज है तो एक शांत है, तो शांत को रोज गाली दे रहे हो, रोज दूसरों से पिट के आ जाता है, रोज किसी की बात नहीं कुछ भी तो सुना देता है। और बड़ा है थोड़ा सा ठीक करता है, उसको कहते किसी दिन जेल लेके जाए। दोनों का स्वभाव अलग है, उन स्वभाव को उपयोग करने को जानिए। समुद्र कहते हैं कि आप मुझको मेरे स्वभाव की सजा नहीं दे सकते। तो बोले फिर क्यों? तो ये आप लोग सुनिए, साइंस में तो साइंटिस्ट हूं, जो न्यूटन ने कहा ना लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ है ना, तो इनर्शिया का फर्स्ट लॉ क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो यदि गतिमान है, यदि मोशन में है या रुका हुआ है, तो तब तक वो उस कंडीशन में रहेगा जब तक उस पर बल ना लगाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो कहा मैं इनर्शिया में हूं, भगवान आपने धनुष बाण लेकर के एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, मेरा इनर्शिया टूट गए, अब बताओ क्या करना है। तो यदि आपको पहले तो स्वभाव को जानिए, और स्वभाव को जानने के बाद वहां पर इनर्शिया को उसकी पहचानिए, ब्रेक द इनर्शिया, देयर आफ्टर हेड द कैनॉन। तो इन दोनों से फिर उसको मुझे व्यक्तित्व का परिभाषा मिलता है कि पर्सनालिटी इज द प्रोसेस व्हिच गिव्स यू कॉन्शियसनेस फ्रॉम इनहेरेंट इनर्शिया। तो आपके अंदर जो जड़ता है उसको चैतन्य करना है। तो आप यदि मिट्टी, हवा, पानी से बंद करके रुके हुए हो तो आप जड़ हो, इनर्शिया में हो। आप उस इनर्शिया को तोड़ना है, तब आप सक्सेस की यात्रा करोगे। इनर्शिया कैसे तोड़ोगे? यदि मिट्टी है तो मिट्टी के स्वभाव को विकसित करो। मिट्टी का स्वभाव क्या है? कहीं पर भी खोद दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नारियल पानी डालो, गंदगी डालो, कूड़ा करकट डालो, जमीन है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो ऐसे वैसे हवा का स्वभाव है सबको झेल जाने की, अग्नि का स्वभाव है सबको जला देने की,
पानी का स्वभाव है सबको शीतल बना देने की, आकाश का स्वभाव है कि विस्तार आ जाने की। इन सब चीजों को यदि आप अपने जीवन में कॉन्शियसली इन सब चीजों को करोगे तो आपके पर्सनालिटी का काम आएगा, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने यहां पर बहुत प्यारी बात कही, प्लीज प्रोसेस। तो प्रोसेस है, प्रोसेस कितना सिग्निफिकेंट है लाइफ में आप देखिए। फर्स्ट टेबल रिसोर्स, रिसोर्स इज अ नंबर 4 and 9, ठीक है। मतलब इस रूम में बैठे हुए हर लोग के पास सेम रिसोर्स है। व्हाट इज दैट रिसोर्स? 4 and 9। नाउ यू आर हैविंग चॉइस टू अप्लाई मैथमेटिकल प्रोसेस। क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइडेड कर सकते हो, स्क्वायर रूट कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू। This second column is a process. Can you see the result? Can you see the result? What is the minimum? And what is the maximum? 2,62,144. It is a difference. And what is that difference? Process. So personality is the process. Everything is a process. और इस प्रोसेस के लिए मैंने कहा आपको एलिजिबिलिटी चाहिए और आपको कॉन्शियसनेस चाहिए। ये मेरी किताब की 25 चैप्टर है जिसमें ये सब चीजें, कर्म, ज्ञान, भक्ति, आपके वीकनेस को कैसे उपयोग करना है, आपके स्ट्रेंथ को कैसे उपयोग करना है, एवरीथिंग इज गिवन बाय एग्जांपल एंड बाय डेफिनेशन। One definition is going to help you. Very 10 सेकंड में ये वार्निंग है। Can you see? हर बार जामुन नहीं मिलते, खुद को पुश करना पड़ता है, ठीक है। तो मंत्रा छोड़ दो, मैं इसको आगे बढ़ता हूं। हनुमान जी, मुझको 2 मिनट बस दीजिएगा, हनुमान जी के लास्ट में करता हूं। आप सब लोग बोलते हैं कि जीवन में सक्सेस होने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, ट्रस्टवर्दीनेस चाहिए, यही चाहिए ना। सीता की खोज में हनुमान जी के पास एक भी चीज नहीं था। नॉट अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, नॉट अ सिंगल क्वालिटी ही वाज हैविंग। आत्मविश्वास, उसको बल का ही पता नहीं था। जामवंत बताते हैं बाबा तुम ये काम कर सकते हो। ज्ञान, लंका का गलियों के बारे में कोई जीपीएस नहीं था उनके पास, लंका कैसे जाना है, कैसे दिखना है, सीता कहां मिलेगी, रावण कहां मिलेंगे, he was not aware of anything। अनुभव, फर्स्ट अटेम्प्ट में समुद्र पार किए, he was not having previous experience, prior experience to cross such kind of ocean। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको चाहिए ना। हाँ, संजय भाई बोलते हैं स्टील का काम नहीं कर सकती आदित्य भाई, क्योंकि हम जानते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। सब्जेक्ट हनुमान जी की सीता जी थी, फोटो भी नहीं देखे थे वो, सीता जी दिखती कैसे पता नहीं था, कोई ऐसा तो नहीं था डीपी निकाल के देख ले व्हाट्सएप सीता जी था। He was not aware। और कहां गए थे? ऐसे मायावी नगरी में गए थे कि रावण को पता चल जाता कि कोई आया है तो हर चौक चौराहे में 4 सीता बिठा देता। और ट्रस्टवर्दीनेस, सीता के पास जा करके, सीता को पता है कि रावण है, मुझ पर अधिकार पाने के लिए किसी नीचता तक जा सकता है। ऐसे समय में जाकर के सीता को यह जाकर के विश्वास दिला देना कि मैं तुम्हारे पति का दोस्त हूं, उसका दास हूं, इज अ नोन पर्सन। ये हनुमान जी की क्वालिटी है। हनुमान जी हमारे ही जैसे हैं। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं इसको स्किप करता हूं। व्यक्ति पहचानने की कला। 5 आदमी से मिलते हैं हनुमान जी। मैनाक से पहले मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, सुरसा के सामने रूप बड़ा छोटा करते हैं, निश्चरी को खत्म करते हैं, कोई डायलॉग नहीं। क्या बोलते हैं, लंकनी के पास उसको मुष्टिका से मारते हैं और विभीषण को गले लगा लेते हैं। 5 आदमी रास्ते में मिलते हैं, पांचों की वही पहचान करते हैं और उनके व्यवहार करते हैं। ये व्यवहार को चेंज करके देखिए, इसको प्रणाम करके देखिए, इसके साथ छल करके देखिए और इसको मुट्ठी मार करके देखिए, चेंज करके देखिए उनका बिहेवियर, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। व्यक्ति पहचानने की एक्सपर्टीज सीखी हनुमान जी से। ये 4 लोग हैं, ये हनुमान जी की तरफ चल करके आते हैं, रास्ते में मिलते हैं उनको। हनुमान जी मात्र इससे तरफ चल करके जाते हैं तो यही आदमी का बनता है। तो ऐसे बहुत सारे गुण मैंने हनुमान जी के बताए हैं। Don't rush. You can take 5 more minutes. No problem. हाँ, तो कभी तो आप मुझको 5 मिनट में कुछ होगा नहीं, 25 चैप्टर है ये। तो how this book will help you as how process I am talking about, है ना? So this is the situation. We are here. Most of the time we struggle because we are not consciously practicing what power we are here. Last, yeah.
कितने लोग हैं अपने आप को वो बंदर जैसे समझ रहे हैं? मैं इधर देख रहा हूँ। हम सब बंदर ही हैं। मेरा अपना मानना है कि आपको कुछ भी चीजों की आवश्यकता नहीं है, जो आपके पास है वो मोर देन सफिशिएंट है। आप कोई भी टारगेट बनाओ, क्योंकि याद रखना, जिस ऊपर वाले ने आपको बुद्धि दी है ना, उसने रिसोर्स भी दिया है। तो जितनी आप बुद्धि से अपना सक्सेस बना सकते हो, उनको पता है कि आदमी कितना सोच सकता है, तो वो पहले से ही आपको सारा सामान दे दिया है। वैसे ही जैसे माँ बच्चे के लिए टिफिन रखती है ना, वो टिफिन कभी कम नहीं होता, याद रखना। बाप रखे तो एक बार कम हो जाए, है ना। माँ रखे तो अपने अपने क्लासमेट को भी खिलाने के बाद भी टिफिन बच जाता है। तो ये जो परमपिता परमात्मा ने हमको यहाँ पर भेजा है, तो हमारा लक्ष्य पहले से निर्धारित हुआ है, और उसके लिए वो सारे रिसोर्स आपको दिए हैं। आपको नए रिसोर्स खोजने की जरूरत नहीं, वो रास्ते में मिलते चले जाएंगे। आप उनका कॉन्शियस जो यूज है आप वो करते रहिए, यही उपयोग है। लास्ट 3 मिनट का वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कि आप लक्ष्य निर्धारित कर लिए और कर्म करना शुरू कर दिए, तो लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं इससे अप्रभावित रहिए। बहुत बार हमारे साथ यही स्थिति हो जाती है कि हम लोगों की प्रतिक्रिया से या तो कर्म बदल देते हैं या लक्ष्य बदल देते हैं। आप ध्यान रखिए, जो लोग प्रतिक्रिया देते हैं ना, तो वो आपके कर्म को देख करके देते हैं। आपके लक्ष्य का उनको पता ही नहीं होता, आपका उनको पता ही नहीं होता कि आप बिना चप्पल के पैदल चल रहे हैं और 10 लोग आपको प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं कि कांटा पड़ेगा, कंकड़ पड़ेगा, चप्पल पहन लो, क्योंकि आपके कर्मों को देख के दे रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि आप एक्यूप्रेशर के लिए पैदल चल रहे हैं बिना चप्पल के। तो जिस समय उनको लक्ष्य पता चल जाएगा, वो प्रतिक्रिया नहीं देंगे। तो लोगों की प्रतिक्रिया वो कर्म के कारण होती है, लक्ष्य के कारण नहीं होती। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ हनुमान जी के जीवन से। मैं चाहूंगा कि मेरे जो साथी जो मुझको सुन रहे हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने की घोषणा होती है, तो आप कल्पना कीजिए, हनुमान जी बंधे हुए और उनको बांध करके लंका के गलियों में लेकर के जाया जाता है। तो लंका जो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, और तुम कहाँ आए पूर्ववासी, सारे लोग हैं, बोले बंदर के पूंछ में आग लगाया जाएगा, सब लोग आ जाते हैं और मारहि चरण करहि बहुहासी। हनुमान जी को कोई पैरों से मारते हैं, कोई पत्थर फेंक करके मारते हैं, कोई है ताली बजा बजा करके उनका उपहास करते हैं। कब तो बंदर के पूंछ में आग लगेगी, अब तो बहुत मजा आएगा। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, उसको सामान्य लंका के नागरिक हैं, वह उस पर लात से प्रहार करते हैं। वह हनुमान जी वह तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, बातें खटते। उसके बाद बाजे ही ढोल दे ही सब ताली, 4-5 नगाड़ा बजाने वाले आ जाते हैं, आगे आगे चलते हैं, सब ताली बजा रहे हैं। हनुमान जी की इतनी बेइज्जती हो रही है लंका में। नगर फेरी पूरे गलियों में घुमाया जा रहा है, हनुमान जी बंधे हुए हैं, हाथ जोड़े हुए राम राम बोलते चले जा रहे हैं। पूंछ में आग लगाने की तैयारी है, और इतनी पूरी प्रतिक्रिया के बाद, इतनी बेइज्जती के बाद हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई जाती है। हनुमान जी कोई प्रतिक्रिया नहीं, हनुमान जी प्रतीक्षा करते हैं, और जब हनुमान जी आग लगा देते हैं, तो यही प्रतिक्रिया देने वाले जो उन पर लात मारते थे, पत्थर मारते थे, वो क्या कहते हैं मालूम है? हम जो कहा यह कभी नहीं होगी, तुम लोग तमाशा कर रहे थे। तो रूप धरे सुर कोई, ये तो कोई देवता है जो वानर के रूप में आए हैं। तो अर्थ क्या है, जैसे ही आप लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, लोगों की प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। तो एक क्षण की बात है, जिसको लोग पत्थर से मार रहे थे, जिसके साथ कौतुक कर रहे थे, खेल कर रहे थे, बंदर समझ के, मदारी का बंदर समझ रहे थे, वो सारे लोग की प्रतिक्रिया बदल गई।
तो जो मैं कहा यह कभी नहीं होगी, वहां पर लोगों को दूर होगी। तो लोगों की प्रतिक्रिया है, आपको कभी दानव कभी मानव कभी भगवान बनाते रहेंगे, प्रतिक्रिया से दूर रहिए, स्मार्ट लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य की ओर कर्म करते रहिए। हनुमान जी से ये बहुत अच्छी बात आपसे। थैंक यू वेरी मच। Questions, so please feel free to ask. We can have one full day session, then we can have Yes. that. अमेज़न में है वो जी। मैं इससे पहले कि आप क्वेश्चन पूछें, मैं प्रेसिडेंट मैडम को ये बुक आप देना चाहता हूं ताकि वो आपके भी सर्कुलेशन में दे देंगे। Thank you so much. Thank you very much for giving this wonderful opportunity. क्योंकि ये तो सत्संग है, तो मैं इस किताब के सबसे बड़ा पाठक मैं खुद हूँ, तो जितना मैं बात करता हूँ तो मैं अपने आप को ज्यादा कॉन्शियस करते रहता हूँ। तो हैव अ वंडरफुल कॉन्शियस जर्नी, और आप सब लोग चैतन्य है ही हैं, बस इतना ही है कि धूल को हटाना है, तो धूल को हटाते रहिए, सफलता आपको मिलते रहेगी। Any questions, please? आपको क्या इंस्पायर ये इंस्पिरेशन है? बहुत बड़े क्वेश्चन है सर। नाउ आई विल शेयर पर्सनल इंसिडेंट। मेरे जो सुनने वाले बैठे हैं ना, उनके सामने अच्छा, हम लोग हनुमान जी को बहुत बलशाली समझते हैं। हनुमान जी उतने बलशाली नहीं, हम लोग हनुमान जी को बहुत ज्ञानी समझते हैं। हनुमान जी उतने ज्ञानी भी नहीं। क्वांटम की बात कर रहा हूं मैं। हनुमान जी की विशेषता ये है कि वो उनको यूटिलाइज करना चाहते थे समय। आपको एग्जांपल देता हूं कि लक्ष्मण को, यदि हनुमान जी के जीवन का सबसे क्रूशियल असाइनमेंट की बात करूं तो क्या है? संजीवनी लाना। क्यों? यहां राम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके थे, इफ एनीथिंग गोइंग टू हैपन टू द लक्ष्मण, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट दिस बैटल। और लड़ाई की बात नहीं है, वो बोलते मैं वापस अयोध्या भी नहीं जाऊंगा। तो इससे पहले हनुमान जी ने जो सीता खोजने का काम किया, लंका जलाने का काम किया, एवरीथिंग गोइंग टू बी वेस्टेड। दूसरी बात, क्रूशियल इसलिए और भी था कि टाइम बाउंडेड असाइनमेंट था कि सूर्योदय से पहले आना है। ठीक है, अब समस्या क्या है कि उनको वहां से जाकर के आना है। हनुमान जी कैपेबल है, और हनुमान जी को कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्य। मतलब यदि नॉलेजेबल लोगों के लिस्ट आप बनाएंगे, हनुमान जी टॉप में आते हैं। हनुमान जी वहां गए, सुखेन वैद्य उनको सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं संजीवनी का, कैसे दिखेगा, कैसे पहचानना है। वो बंदा वहां जाकर के भूल गया। कौन? हमारे जैसे आदमी नहीं, मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन ऑफ दिस अर्थ। और अपने क्रूशियल असाइनमेंट में he known for that particular characteristic, particular quality, this quality is not going to be used, he is not going to help him. मैं सोचता हूं मेरा इन्वेस्टमेंट काम नहीं कर रहा है, मेरा एक्सपीरियंस काम नहीं कर रहा है, मेरा एमबीए की डिग्री काम नहीं कर रहा है, और वहीं पर माथा पीटते रहता हूं। हनुमान जी बोलते हैं नॉलेज को करो किनारे, मेरे पास स्ट्रेंथ भी है। पहाड़ उठा करके लाते हैं, सुखेन के सामने रखते हैं, भाई अपना नॉलेज को उपयोग कर, मेरा तो काम नहीं किया। वो वहां पर सर नहीं पीटते रहते। यदि हनुमान की जगह मैं होता तो सबसे पहले बोलता कि यार पहले आप कोई क्वेश्चन पूछ लोगे मुझसे और उसका आंसर नहीं है तो उल्टा सीधा आंसर दूंगा, क्योंकि आई एम एक्सपर्ट यार, आई हैव रिटन दिस बुक 300 पेजेस, आई एम नॉट एबल टू आंसर व्हाट पीपल विल थिंक। तो आई विल बी हैविंग दैट बैगेज माय रूम्स। और उसके बाद मैं ले आता और उसके बाद सुखेन वैद्य से लड़ाई करते रहता, तुमने देखा जो जो बोला था सब इसमें है। हनुमान जी, तो मेरे जीवन में भी आज से 2 साल पहले एक ऐसी स्थिति आई कि जिसके लिए मेरी क्वालिटी जानी जाती थी मेरी प्रोफेशनल लाइफ में। आई एम नोन फॉर दैट। मैं क्लेम करता हूं आई एम अ वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया, एंड दैट प्रोजेक्ट इज नॉट गिवन टू मी। और जिसको दिया वो दुनिया का सबसे बड़ा गधा आदमी है। ठीक है, अब पूरा ऑर्गेनाइजेशन है मुझसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्रोजेक्ट ले लो, प्रोजेक्ट ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं हनुमान की यात्रा पर हूं। तो उस समय मेरे पास भी ये था कि मैं फ्रस्ट्रेशन में चले जाता, बट मुझको लगा कि मैं बस उस समय हनुमान जी को पढ़ भी रहा था। मैं बोला कि ये दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। दुनिया के सबसे बड़े नॉलेजेबल आदमी को उनके क्रूशियल असाइनमेंट में काम नहीं आया। देन आई स्टार्ट रियलाइजिंग, एंड मैं हनुमान जी को फिर पढ़ना शुरू किया, अंदर जा जाके तो उनकी कमियां खोजना शुरू किया कि मुझको तो मेरे माता पिता और जितने भी गुरु लोग हैं हनुमान जी की विशेषता बताएं कि वो कुछ भी कर लेते हैं।
फिर मुझको लाइन से हनुमान जी की कमियां दिखनी शुरू हुई कि इनमें ये कमी थी, इनमें ये कमी थी, इनमें ये कमी थी, लेकिन उस कमियों में भी वो कैसे सक्सेस हुए थे। That was the my takeaway from this book. So हम लोग, हमारी समस्या क्या है कि मैं किसी को इतना बड़ा जैसे मैं देवता बना देता हूं, फिर मैं ऐसा लगता हूं कि मैं वहां तक तो नहीं पहुंच सकता। तो यदि मैं विजय भैया के घर गया और उनके बागवानी में बड़े बड़े आम के फल लगे हुए हैं पेड़ में, और मैं सोच के उससे इंप्रेस होकर के आके पहले दिन घर में सोचूं मेरे घर में इतना बड़ा, अरे भैया उन्होंने परवरिश किया है, 2 साल 4 साल तक पानी दिया है, बंदर से बचाया है, खाद दिया है ना, वो मैं गेहूं कभी कभी तो छुपा के रखा है, 2 ही फल है, तोड़ के ना ले जाए। बहुत बड़ी परवरिश करना पड़ता है, तब वहां तक आप पहुंचते हैं। सो दैट्स व्हाई 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज अ कॉन्शियस, सेकंड इज अ प्रोसेस। मैंने आपको नंबर का बताया, जो जीवन में सक्सेस होते हैं उनके पास रिसोर्स ज्यादा नहीं होते, दे आर एक्सपर्ट, वो बार बार प्रोसेस करते रहते हैं, देखते हैं कहां पर ज्यादा होता है। थैंक यू। मुझे स्पेसिफिकली आपकी बातों से बड़ा इंप्रेसिव लग रहा है अभी प्रेम, बट मुझे ये जानना है कि व्हाट इज योर डेफिनेशन टुवर्ड्स द कंटेंटमेंट, क्योंकि हमारे पास इतनी मटेरियल चीजें हैं, लेकिन जितने लोगों से हम सुनते हो बोलते हैं ट्राई टू बी मोर कंटेंट, देन यू विल ट्राई टू अचीव योर सक्सेस। कंटेंट का एक ही डेफिनेशन है भाई मेरे शब्द में, आनंद, जहां पर मजा आ रहा है ना वही कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का जैसे क्या है कि हर चीज का एक लक्षण होता है, सिम्टम होता है, एंड वी नोन फॉर द सिम्टम। डॉक्टर साहब के पास जाओगे तो सबसे पहले सिम्टम ही पूछते हैं, है ना, क्लिनिकल कंडीशन, यू यूज दिस टेक्निकल वर्ड, करेक्ट सर? So the thing is, I will see the clinical condition, then I will say whatever you are telling it is okay, but clinically it is different, correct ना? तो इस सिम्टम है, आपका कंटेनमेंट का सिम्टम है कि if you feel satisfied, if you feel happy, that's all. नहीं तो बंदर जैसी स्थिति। You had a nice thing of different situations, we took different decisions. So I don't know, in the modern thing, is that situational leadership? No, not situational leadership. This is consciously. देखिए आप उनका मेरे किताब में आप पढ़िएगा, वो 5 आदमी की पहचान करते हैं। 5 आदमी की पहचान आपको भी करनी है। You are getting this 5 people around you only, but consciously you are not trying to understand. सबसे पहले मैनाक आते हैं, मैनाक बोलते हैं कि भैया बहुत लंबी यात्रा है। He was thankful person. मैनाक was a thankful person. तो बोले आप एक काम करो, थोड़ा आराम कर लो। आपके जीवन भी ऐसे आते हैं, नया प्रोजेक्ट शुरू करोगे, ये यार इतना हड़बड़ी क्या है, घर में तो सब कुछ रखा है, क्यों उधर जा रहा है, 50 आदमी आपको रोकने के आ जाते हैं, ठीक है, क्यों फैक्ट्री डाल रहा है, वो चेन्नई में क्यों जा रहा है, यहाँ तो सब कुछ है, और तो यदि करना ही है तो वहां चल दे। तो ये दे आर वेल विशर। मैंने कहा वो आपके लक्ष्य को नहीं जानते, वो आपके कर्म को देख करके प्रतिक्रिया देते रहते हैं, और ऐसे लोगों को प्रणाम करना। नीड नॉट टू हैव डेन डेला, हनुमान तही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम। आगे क्या बोलता है, राम काज किन्हे बिना वही काम विश्राम। भैया फैक्ट्री तो ई रोड में ही डालना है, वही डालना है, उसमें तो क्या मदद करना है बताओ, ठीक है। इससे पहले लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। दूसरा सुरसा है, सुरसा है वह देव सत्ता के प्रति वो थैंकफुलिटी। सुरसा सबसे पहले हनुमान, देखिए ये हनुमान जी है, वहां पर ऐसा नहीं है, वो एक शब्द सुनिए, सुरसा क्या कहती है, हनुमान जी सब फर्स्ट बोलती है, ओह वेरी गुड, गॉड हैज गिवन अ वंडरफुल फूड, आज तो खाना अच्छा मिला है। हनुमान जी समझ जाते हैं ये देव सत्ता के प्रति आभारी है, मतलब आदमी ठीक ठाक है भगवान का डर तो इसको है, ठीक है, तो मैं इसे नेगोशिएट कर लूंगा। लेकिन बाद में हनुमान जी को पता चलता है कि भाई ये तो नाग की माता है, तो हनुमान जी स्वभाव में जाते हैं। उनका स्वभाव क्या है कि सर्पणी है, अपने बच्चे को खाती है, तो यदि मैं इसको मां कह रहा हूं, इसको मुझको खाने का प्रयास कर रही है ये, तो इट इज नथिंग अगेंस्ट हिज नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी बात क्या है कि सुरसा है, हनुमान जी से कहती है यू कैन नॉट क्रॉस फ्रॉम हियर, मतलब अहंकार है। हनुमान जी बहुत अच्छा मैसेज देते हैं, किसी के अहंकार से हनुमान जी गलती करते हैं, वहां पर मैं आपसे कहा ना गलती खोजिए, हनुमान जी गलती करते हैं। सुरसा है अपना रूप बढ़ाती है, तुम नहीं जा सकते यहां से, हनुमान जी डबल करते हैं। सुरसा फिर डबल करती है, हनुमान जी फिर डबल करते हैं। हनुमान जी को बाद में समझ में आता है भाई ये जो युद्ध है ना ये अहंकार का है, तो अहंकारी आदमी से आप बल से नहीं जीत सकते, बुद्धि से जीतना है। तो पता करो आपके आसपास किसका अहंकार बड़ा है, अहंकार बड़ा है, और उससे आप बल लेकर के जाओगे, अपनी विशेषता लेकर के जाओगे, हारोगे। हनुमान जी हैं सबसे छोटा रूप, अहंकार से लड़ना है तो क्या करो, जितना झुक सकते झुक जाओ उसके सामने। हनुमान जी है छोटा रूप लेते हैं और उसके बाद प्रणाम करते हैं, सुरसा भी खुश, हनुमान जी भी खुश। तीसरा व्यक्ति मिलते हैं उनको निश्चरी। निश्चरी है वो क्या करती है कि वो किसी से कोई वार्तालाप नहीं, ऊपर से खींच लेती है। ऐसे बहुत सारे लोग आपके साथ समाज में हैं
वो आपके साथ छुपे रहेंगे, आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन वो आपके कस्टमर को डिस्टर्ब करते रहेंगे। है ना, यू डोंट नो इवन। आपके कस्टमर को डिस्टर्ब कर रहेंगे, आपके इन्वेस्टर को डिस्टर्ब करते रहेंगे, आपके जो मजदूर है उसको भगाते रहेंगे, आपके ड्राइवर को लेकर के चले जाएंगे। यू डोंट नो, प्लीज डोंट हैव डायलॉग। किल मतलब मर्डर नहीं करना है ना, मतलब उनसे कोई संबंध नहीं रखना। इसके बाद है जब लंकनी से मिलते हैं, कितना बढ़िया लक्षण, ये सब आपके सामने मिलते हैं। लंकनी है, she is deputed there with some responsibility, role and responsibility। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो चौकीदार है, ठीक है, और वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है। जाने वो नहीं मरम सठ मोरा और मोर आहार जहां लखी चोरा, तो मैं चोर को पकड़ लेती हूँ, उसको खा जाती हूँ। हनुमान जी बोलते हैं कि क्वालिफिकेशन ठीक नहीं है, ट्रेनिंग ठीक नहीं हुआ इसका। बोले चोर तो रावण है जिसकी तुम रखवाली कर रही हो, मैं तो चोर को पकड़ने आया हूं, तुम मुझको पकड़ रही हो। सिस्टम में ऐसे बहुत लोग हैं, ठीक है, जिसको आपको मदद करना है वो उल्टा काम करते रहते हैं, वो चोर को बचाते हैं, वो अत्याचार करने वालों को बचाते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या करना है, क्योंकि वो सिस्टम में बैठे हुए हैं, उनकी जरूरत है आपको। आप कलेक्टर ऑफिस में गए और वहां पर एक क्लर्क है, उससे लड़ झगड़ के आ गए, तो आपका काम जरूर किया ना, तो पहले उसको मुटका में मारना है, उसके बाद बैठ के सत्संग करना है, उसको पावर बता रहे हैं अपनी। तो हनुमान जी से गुटिका एक महाकपिहनि, और कैसे मारते हैं, रुधिर बमन धरणी ठरिमनि, वो जमीन पे गिर जाते हैं, मतलब उनको उसकी औकात दिखाते हैं कि हु आर यू एंड हु एम आई। और उसके बाद उसको उठाओ, बिठाओ, उनको बैठा करके पानी पिलाओ, 2-4 पैसे लंचा मंचा जो भी करना है आपको वो करवाओ उसका बाद में। और उसके बाद भी हनुमान जी सत्संग करते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बहुत प्यारी लाइन लिखते हैं, आपको पता है, मैंने कहा ना उनके पास जीपीएस नहीं था हनुमान जी के पास, लेकिन रात को वो घुसते हैं लंका में और मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मतलब घर, देखे जहां तहां अग्नित जोधा, और गयो दशानन मंदिर माही, मिडनाइट में रावण के बेडरूम में चल जाते। कैसे चले गए भाई, वो लंकनी के साथ बैठ के सत्संग करते हैं। जब उसको मार पड़ती है उसके बाद बताते हैं कलेक्टर साहब ये कमजोरी है, कमिश्नर साहब के पास जाओगे ये काम होगा, फाइल यहाँ पर रुका हुआ है, सारा काम आपको निकल जाता है। तो आपको सिस्टम में जो लोग हैं उनको पहचानना है। और विभीषण है साधु है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, और फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, उनके साथ सांत्वना से बात कीजिए। उनके जीवन का सबसे बड़ी समस्या क्या मालूम है, जीवन में बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, वो हमारे लिए हथियार बन सकते हैं। कारण क्या है, उनका अनुभव उनका काम नहीं आया, उनका ज्ञान उनका काम नहीं आया, उनकी एक्सपर्टीज उनकी काम नहीं आई, उनकी भक्ति उनके लिए काम नहीं आया। और ये सब कुछ रेडीमेड रखा हुआ है भाई, फैक्ट्री सब कुछ है, जाकर के आपको अपना मटेरियल बनाना शुरू करना है। विभीषण वाज लाइक दैट। ऐसे लोग मिलते हैं, उनके साथ सांत्वना से बैठिए, उनको जितना। और हनुमान जी क्या करते हैं, वो बोलते हैं भाई मैं तो राक्षस कुल का हूं। हनुमान जी से यह भी सीखिए कि आपको कहां अपने बड़प्पन दिखाना है, कहां छोटापन दिखाना है। वो बोलते हैं आप, हनुमान जी बोलते हैं कि आप राम के पास आ जाओ। तो विभीषण बोलते हैं कि तामस्तन कुछ साधन नहीं, भाई वो तो महान आदमी है, सत्यवादी है, और मैं तो राक्षस कुल में पैदा लिया हूं, तो मुझको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। हनुमान जी क्या बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं कहूं कवन मैं परम कुलीना। अरे भैया मैं कौन सा बड़ा कुल का आदमी हूं, मेरी बात करो, तुम बाकी को छोड़ो। कभी चंचल सब ही विधि है ना, यदि लोगों को सबसे निकृष्ट किसी को मतलब उपमा देना है, बोलते हैं बंदर जैसे काम मत कर, है ना। आगे प्रात ले तो जो ही नाम हमारा, हनुमान जी देखो अपने आप को कितना डिग्रेड कर रहे हैं। प्रात ले तो जो ही नाम हमारा, सुबह सुबह भैया कोई मेरा नाम लिख ले तो तही दिन ताही ना मिला आहार, उसको दिन भर भोजन नसीब नहीं होता। ऐसे आदमी हो, लेकिन राम जी ने मुझे एक्सेप्ट किया। आपको हर जगह नहीं बताना है कि विजय भैया मेरे सामने बड़ा दुखी होकर क्या है, भैया मैं तो आई एम अ साइंटिस्ट। रख अपने साइंटिस्ट को बगल में, वही बात करो। मेरे साथ भी स्थिति थी भैया, वो पापा जी ने तो मैं सोचा था कि मुझे कोई मदद करेंगे, दो गाली देकर के भगा। आपको उस समय कैसे बात करनी है, अपनी कमियां कैसे बतानी है। कारण क्या हो, ऑलरेडी अपना सब कुछ खो चुका है और वो आपके लिए रेडीमेड है सब कुछ। उनकी फैक्ट्री नहीं चल रही है और आपको मटेरियल बनाना है, तो 0 इन्वेस्टमेंट में आपका काम हो जाएगा। हनुमान जी विभीषण को गले लगा के ये 5 लोग आपके जीवन में हैं, हम पहचानते नहीं। हम क्या करते हैं, विभीषण को मुटका मारते हैं, लंकनी को जाकर के गले लगाते हैं, तो मैनाक के साथ बैठ करके गपशप मारते हैं। बस यही है कॉन्शियस और इसको प्रोसेस में लाते रहिए। जैसे प्रोसेस में लाएंगे यू विल बी कैपेबल टू आइडेंटिफाई व्हाट हुआ है। पढ़िएगा जब। और इसकी विशेषता यह है कि दिस बुक इज रनिंग 25 चैप्टर्स और ये 288 पेज की है, तो एक चैप्टर है 10 से 12 पेज में खत्म हो जाता है।
तो यू नीड नॉट टू रीड कंटिन्यूअसली। और एक एक चैप्टर है, एक एक कैरेक्टरिस्टिक पर है। कर्म है, हम कर्म की जो परिभाषा, गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए पर्याप्त है 10 पेज पढ़ना। कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, अहंकार से कैसे निपटना है, अपनी कमजोरियों को कैसे शक्ति बनाना है। तो बहुत सारे इसमें 25 चैप्टर है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। एक्चुअली इट इज अ रेफरेंस। I request Secretary Meera to kindly report. मेरा जी एक मिनट, अब यदि आपको ये बुक चाहिए तो आप सिद्धार्थ भाई से कह दीजिए, तो मैं यहाँ पर रोटरी में ही पहुंचवा दूंगा। जिनको चाहिए आप इनको बता दीजिए, उतनी कॉपी मैं यहाँ भिजवा दूंगा। हाँ जी जी। गुड न्यूज, अगेन हनुमान जी की पूरी बात कर रहा हूँ तो हमसे दूर हट करके, इसकी 1000 कॉपी पब्लिशर ने छापी थी, एंड इट इज आउट ऑफ प्रिंट नाउ विद इन अ वीक। आप अभी तक आप मेरे जितने भी मित्र हैं उनको मैंने लिंक नहीं भेजा है, वो अपना क्या बोलते हैं अमेज़न वगैरह का। तो पब्लिशर ने कहा भैया रीप्रिंट हो जाए तब भेजना, अभी मत भेजो। तो विमोचन से पहले ही 805 कॉपीज है एडवांस बुकिंग हो चुकी है, एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, सिंगापुर, जर्मनी, अमेरिका, नीदरलैंड, ये विदेशों में है, और ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स, और उसके बाद पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब जगह। तो ये बस हनुमान जी का है। Thank you, Dr. Aditya Shukla, for enlightening us on conscious journey of self-elimination from person to personality with lot of different examples. We had a wonderful time, which has been so enriching and enjoyable. I'm sure every member has something to take home today. My sincere gratitude to all the people who are present here, prospective members and guests. Thank you so much. Meeting is adjourned. Request everyone to kindly stand for national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।